تو باجی کے حوالے ہم 15,000 کی رقم کرنے لگے ہیں. باقی ہم باجی سے پھر گفتگو کریں گے. تو باجی یہ 15,000 روپے آپ گن لیں جی, گن لیں آپ. باجی کتنے روپے آپ نے وصول کر لیے جی؟ 15,000 دیے ہیں بھائی, بڑی مہربانی, شکریہ. غضنفر بھائی نے جو رقم آپ کے لیے 15,000 کی بھیجی آپ نے وصول کر لی جی بالکل, میرے پاس پیسے آ گئے ہیں. اور یہ میرے بچوں کا ٹائم لیا ہوا تھا. صبح میں نے جانا تھا لاہور, میں پریشان تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو لے کے کیسے جاؤں. میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا. بڑی مہربانی, شکریہ بھائی, آپ نے اتنے دور بیٹھ کے پردیس میں بیٹھ کے. غضنفر بھائی کو پیغام اگر کوئی دینا چاہیں تو. جی بھائی, آپ کے لیے بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. اللہ میاں آپ کو رزق, کاروبار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین. اور ناظرین, اس وقت میں یہاں پہ جس بھائی اور بہن کے گھر پہ موجود ہوں, تقریباً کوئی 5-6 ماہ پہلے بھی ہم یہاں پہ آئے تھے اور آج ایک بار پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, موٹر رکشہ چلاتے ہیں. رکشہ تو ان کا اپنا نہیں ہے, کرائے پہ چلاتے ہیں. اور ان کے 3 جو ہیں یہ بچے ہیں, لیکن اللہ کو شاید یہی منظور ہے کہ بھی ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے. تینوں جو ہیں وہ آنکھوں سے بینائی سے محروم ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی سے رکشے چلا کے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ کے ساتھ بچوں کی پڑھائی کا بھی ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ ان کا علاج بھی چل رہا ہے. تو جتنے مشکل آج کل حالات ہیں تو اس میں ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور ہم جو انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں وحید یوسف صاحب, ان کے دوست ہیں آگے غضنفر بھائی صاحب, جنہوں نے ان کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے, وہ بھی ہم ان کے حوالے کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھائی غضنفر صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, جنہوں نے ان مستحق افراد کے لیے اپنے ہاں سے مال خرچ کیا. تو ابھی ہم بھائی سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. چھوٹے بھائی, آپ ایک بار پھر ہمارے غضنفر بھائی کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے بتائیں گے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کتنا عرصے سے کر رہے ہیں؟ میں بھائی رکشہ چلاتا ہوں نا, تقریباً 8-10 سال ہو گئے. اچھا. تو بس ان کے آنے جانے کے لیے اسکول میں چھوڑنا, پک اپ ڈراپ, شام کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے, پھر آنے جانے جتنا باقی ٹائم بچتا ہے وہ rکشہ چلا کے پھر یہ گزارا ہوتا ہے ان کا. یعنی اسکول آپ ان کو خود لے کے جاتے ہیں؟ جی جی, خود لے کے آتے ہیں. پھر شام کو ٹیوشن بھی ہے. پھر اچھا ٹیوشن بھی سیٹلر ٹو مہین تو کوئی دور ہے ذرا, کیونکہ باجی یہ اسپیشل ایجوکیشن کی ٹیچر ہو جائے, عام ٹیچر تو نہیں یہ پڑھا سکتے یہ. پھر اچھا, اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچر ہیں. اس لیے پھر رکشہ لیا تھا, پہلے میں ڈرائیونگ کرتا تھا. اچھا. تو اسی لیے پھر رکشہ لے کے ان کو بھی چھوڑتا ہوں, جو باقی ٹائم میں جو پیسے وہ کما کے جو گھر کا. رکشہ آپ کا اپنا ہے؟ نہیں, کرایہ کا ہے رکشہ. تو کتنا یعنی کہ آپ کو کتنا کرایہ یعنی کہ آپ دیتے ہیں رکشے کا؟ ڈیلی دیتے ہیں؟ ہاں ڈیلی دیتے ہیں. منتھ کا 5,000 5,500, ویسے تو 6,000 بنتا ہے رکشے کا. مہینے کا آپ رکشے کا کرایہ دیتے ہیں؟ اکٹھا دے دیتے ہیں, جیسے ایزی ہو گیا 1,000-2,000 وہ بھی دیتے رہتے ہیں اکٹھے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی, چلیے ہم بچوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی میرا نام سعدیہ اور میں 10th کلاس میں پڑھ رہی ہوں. 10th کلاس میں پڑھیں. تو یہ آپ کی کیا چیز ہے یہ جو پڑی ہوئی ہے؟ جی یہ بریل سسٹم ہے, یہ فریم ہوتا ہے پہلے, اس کے اندر ہم ایسے پیج کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمارے الفابیٹس ABC ہوتی ہے. تو مطلب ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے. اچھا. تو اس کے بعد ایک ڈاٹ لگائیں گے, A بن گیا, پھر B بن گیا, AC, D اور E. اچھا, اس طرح آپ یہ اس طرح سے میں اپنا نام بھی جیسے لکھ سکتے ہیں, جیسے DI. اچھا اور A. ٹھیک. اچھا, اس طرح آپ یعنی کہ اس پہ پڑھتی ہیں. تو کون سے اسکول ہے آپ کا, کیا نام ہے اسکول کا؟ جی سیکنڈری اسکول فار دا بلائنڈ بہاولپور میں ہی ہے. سیکنڈری اسکول فار دا بلائنڈ. یہ لکھا ہوا ہے. یہ اب آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ اب آپ نے کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ABCF تک لکھی ہے. ABC, ٹھیک ہے. D ہے. یہ ایک منٹ. اچھا, اس طرف سے نہیں, اچھا اس طرف سے. اچھا الٹی سائڈ سے. لیکن پڑھتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. سائڈ سے اور اچھا. پڑھتے ہیں. اچھا, پڑھتے اس سائڈ سے. ابھرے ہوئے لفظ. اچھا اچھا. تو ابھی آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ ماشاء جی اللہ میں 10th میں. 10th میں پڑھ رہی ہیں. چلیں ماشاء اللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے, آمین. اچھا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل. سہیل. تو بیٹا آپ بھی اسی طرح اسی اسکول میں پڑھتے ہو؟ جی. اچھا, تو یہ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو آپ؟ 4 میں. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ پڑھ کے اس پہ یہ آپ کی بک ہے؟ جی. تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں. جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ الف بے جیسے ہوتے ہیں نا. اچھا, یہ اردو لکھی ہوئی ہے. یہ اردو لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں حمد پڑھ رہا ہوں. اچھا, حمد پڑھ کے سناؤ. ہر رت میں نیا سما, نئی بات
अच्छा, ये आप उंगलियां रख के पढ़ रहे हैं? साढ़े हम्म, से बंद अच्छा, है चलो माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 4 4 में पढ़ रहे हैं, चले जी। और दूसरे भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हाँ। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? साकिब अली, साकिब अली। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। यस तो आप भी इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह की ये आपके भाई वगैरह पढ़ते हैं? आपकी भी यही बुक है? जी अच्छा, तो ये आपकी ये सारे डॉट्स ही लगे हुए हैं, हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ है जी। और क्या लिखा हुआ है। तो आप, तो ये इंग्लिश की बुक है, इसमें यहाँ में ये क्या चीज़ है? इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की बुक है? तो थोड़ा बताएं ये क्या लिखा हुआ है? मेंबर ऑफ हम्म, आवर फैमिली हम्म, वी अपील हम्म, टू हम्म। to get one of them hanged in children for चलें, ठीक हो गया जी। तो अब बाबा के साथ फिर बाबा आपको छोड़ के आते हैं? जी। अच्छा, क्लास कौन सी थी आपने बताई? 8th 8th में? जी। 8th में पढ़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता नहीं, बिल्कुल काम नहीं, या थोड़ा सा नज़र आता है या बिल्कुल भी नहीं? बस बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। अच्छा, बिल्कुल भी। Vision impaired। अच्छा अच्छा। तो बता रहे थे बाबा आपके कि भी कहाँ डॉक्टर के पास कब जाना है? कल? जी कल जाना है, आज तो शाम को जाना है, सुबह तो पहुंचना है वहाँ 7:30 बजे टाइम लिया हुआ है इसका। अच्छा, टाइम लिया। तो क्या इनके क्या इलाज कराएंगे वहाँ पे? वो इनका चेकअप वो करते हैं कि भाई जो नज़र पहले से अच्छी हो रही है या कम हो रही है, जो हर साल वो टाइम देते हैं। हम इसे 8 साल से जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, 8 साल से से चेकअप कराने के लिए कि इनकी ठीक कोई है। मसला चलें, अच्छा ठीक हो है। हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी आप कुछ बताएंगे ये क्या आपके बचपन से हैं बच्चों को इस तरह मसला? माशाल्लाह, ये मेरे 3 बच्चे हैं और ये तीनों ही ब्लाइंड हैं। हम उधर बेसिकल गांव के रहने वाले थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए इधर शहर में आए हैं। जी। हम दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, जैसे भी हालात है वक्त है, गुजारा हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चे माशाल्लाह आज बहुत अच्छी क्लासों में, बेटी माशाल्लाह 10 में है, बेटा माशाल्लाह 8 में है और छोटा बेटा माशाल्लाह 4 में है। ये मेरे बच्चों का लाहौर इलाज हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि जब से ये इलाज चल रहा है इतना हमें पता चल गया है कि इनकी नज़र माशाल्लाह 2 से 3% बढ़ गई है जब से ये इलाज चला है। वे पहले तो ये बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते थे, एक ही जगह बैठे थे, और जब से ये इलाज शुरू किया है जैसे डॉक्टर बताते हैं हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी अफोर्ड नहीं है हर महीने की हम इसको ये वाली मेडिसिन लेके नहीं दे सकते। अच्छा, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या कभी, क्योंकि हमारे 3 बच्चों का मसला है और तीनों ही ब्लाइंड है। तीनों का इलाज करना, घर का पेट पालना बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद भी छोटा मोटा काम, मैंने मजदूरी, कुछ सिलाई का, कुछ मेहनत मजदूरी लोगों के घरों का कर लेती हूँ काम। ठीक। इस तरह से गुजारा हो जाता है। बाकी ये टाइम लिया हुआ था, सुबह है 24 तारीख। अच्छा, ये आज 23 है। अच्छा, सुबह ये- 24 जी, हाँ ये जी, सुबह 7:30 बजे हमारा टाइम हाँ लिया जी, हुआ ये है। लिखा हुआ है 24/7/2023 बरोज पीर सुबह जी 7:30 बजे। 7:30 बजे आप आए। जी। तो ये कहाँ पे आपने जाना है? ये हमने जाना, ये हॉस्पिटल है रहमतुल्लाह जोराटोन शपटोन में, लाहौर में? अच्छा, LBTR। अच्छा, लाहौर जाना है आपने जी, कल? लाहौर। कल यानी पहुंचना है आपको? जी हमने, अगर हमसे हो सका, सबक हो गया, अल्लाह ने किया तो इंशाल्लाह हम सुबह शाम के टाइम निकल जाएंगे और सुबह लाहौर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला की फजल से आप खैरियत से पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात आसान फरमाए। अच्छा, देखने वाले को थोड़ा सा हमारे बताएंगी कि आपके ये टोटल 3 बच्चे हैं? जी मेरे तीनों बच्चे हैं। बड़ा मेरा बेटा है, उसका तो ज़रा ज़्यादा मसला है। अच्छा। और बेटी का भी माशाल्लाह, जो ये मेरा छोटा बेटा है ना, सबसे छोटा, इन दोनों की जब से इलाज करने लगी हूँ, 8 साल बता रहे हैं मेरे मियाँ, उन 8 सालों में इनकी 2% बढ़ी है। 2% नज़र बेहतर हुई है? जी जी, थोड़ा थोड़ा इनको जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं इनको एग हो गया, मछली हो गई, बकरा गोश्त हो गया, दूध हो गया, इनके पट्टों का मसला है। वो कहते हैं ताकत की चीज़ें ज़्यादा। जैसे ताकत की चीज़ें देंगे या मेडिसिन जैसे खिलाएंगे, जैसे भी इनको ताकत की चीज़ें मिलेंगी वो वैसे इंशाल्लाह हो सकता है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर कुछ ना कुछ होगा जी। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। तो ये पूछना ये था कि ये 3 ही बच्चे हैं आपके जी, टोटल मेरे- और तीनों का ही आंखों का जी, प्रॉब्लम? तीनों का मसला। तो आपकी जो शादी है क्या वो कज़न मैरिज है? जी जी, कज़न मैरिज है। कज़न है आपके? मेरे मामू का बेटा है, मैं इनकी फुप्पो की बेटी हूँ। अच्छा, ये आपके मामू का बेटा है और आप इनकी फूफो की बेटी हो गई। चलें जी, अल्लाह ताला जी आपके लिए मुश्किलात जो हैं आसान फरमाए जी। बिल्कुल परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों का टाइम लिया हुआ है और हम कैसे जाएं।
बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे और देखो अल्लाह ने सबब बना लिया इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो जो भाई हेल्प कर रहे हैं गजनफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिल से इन तीनों बच्चों की दुआएं आपके लिए। नाज़रीन, बाजी के मुख्तसर हालात तो आपने जान लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और जैसे ये बच्चे का इलाज करवा रही हैं, अल्लाह करे नज़र में इनकी कुछ और बेहतरी आए, ताकि ये बच्चे अपने बड़े होकर अपने घर वालों के लिए भी आसानी का बायस बने और इनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो। तो इनके लिए इंग्लैंड से हमारे भाई हैं वहीद यूसुफ साहब, उनके दोस्त हैं गजनफर भाई। तो गजनफर भाई ने वहीद यूसुफ साहब के ज़रिए हमें 15,000 की रकम भेजी है, जो हम इन बाजी के हवाले करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं, और भाई गजनफर साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इनके लिए 15,000 की रकम भेजी है। वो हम बाजी के हवाले करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे भाई गजनफर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने परदेश में बैठ के इन लोगों के लिए अपने माल में से खर्च किया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में उसको कबूल फरमाए और उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बाजी के हवाले हम 15,000 की रकम करने लगे हैं, बाकी हम बाजी से फिर गुफ्तगू करेंगे। तो बाजी ये 15,000 रुपये आप गिन लें जी, गिन लें आप। बाजी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए जी? 15,000 दिए हैं भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। गजनफर भाई ने जो रकम आपके लिए 15,000 की भेजी, आपने वसूल कर ली जी बिल्कुल, मेरे पास पैसे आ गए हैं और ये मेरे बच्चों का टाइम लिया हुआ था। सुबह मैंने जाना था लाहौर में, परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बच्चों को लेके कैसे जाऊँ, मेरे पास किराया भी नहीं था। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाई, आपने इतने दूर बैठ के प्रदेश में बैठ गजनफर भाई को पैगाम अगर कोई देना चाहें तो। जी भाई, आपके लिए बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आप अल्लाह मियाँ आपको रिस्क, कारोबार, तरक्की दे आपको, अल्लाह मियाँ आपके बच्चों को सेहत दे। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ भाई गजनफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी। अल्लाह ताला मेरे गजनफर दिल की गहराइयों से मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल को शुक्रिया करो। बस बेटा शुक्रिया कि गजनफर भाई के लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह बेटा ज़रूर, और भाई वहीद यूसुफ साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। के लिए भी बहुत है। आमीन जी। आप गजनफर भाई को कोई पैगाम देना चाहें भाई तो आप दे सकते हैं जी, आपको देख रहे हैं इंग्लैंड में वो जी सब। मेहरबानी गजनफर भाई, आपके लिए बहुत ढेर ढेर दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह आपने मेरे बच्चों के लिए मसला हल किया। डॉक्टर का चेकअप था तो हमारे परेशान थे, जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, फिर हम तो इसलिए बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको बहुत दीजिए। आमीन सुमन। अल्लाह ताला जी आपकी दुआएं भाई गजनफर साहब के हक़ में कबूल फरमाए और हमारे तमाम उन भाइयों और बहनों के हक़ में कबूल फरमाए जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और फलाही काम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।